Now today we will start with process for execution. Yesterday you dealt with application for execution, who may apply, when he may apply, etc. etc. Today you will deal with process for execution. So for that purpose refer to order 21, rule 24 and 25. What does rule 24 tell you? Rule 24 simply tells you that whatever preliminary measures that were required in the foregoing rules, मतलब applications को लेके जितने भी preliminary measures थे, एक बार आपने उससे deal कर लिया तो उसके बाद court shall issue the process for execution for decree unless and until it sees a reasons to contrary. अब उस process पे एक date होगी on which it was issued. It shall be signed by the judge or such officer as the court may appoint in that behalf and shall be sealed with the seal of the court. ठीक है. साथ ही साथ प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन में जब आप उसका सब रूल 3 देखते हैं तो वो आपको बताता है कि जहाँ पे भी कोर्ट एग्जीक्यूशन का प्रोसेस इशू कर रहा है तो उसमें वो स्पेसिफाई भी करेगा कि किस दिन एग्जीक्यूशन होगा और कब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाना चाहिए. You can look at the words. It says, in every such process, a day shall be specified on or before which it shall be executed, and a day shall also be specified on or before which it shall be returned to the court. But no process shall be deemed to be void if no day for its return is specified therein. ठीक है, वो प्रोसीजर void नहीं होगा कि लेट सपोज कि कोर्ट ने डे फिक्स की कि आज से 2 महीने के अंदर जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाना चाहिए. फॉर वन रीजन और अनदर नहीं हो पाया तो क्या एग्जीक्यूशन का प्रोसेस वॉइड हो जाएगा? द आंसर इज नो, इट वोंट. अब आ जाते हैं रूल 25 पे. इट मेयरली टॉक्स अबाउट एंडोर्समेंट ऑफ द प्रोसेस. इसमें सिंपली से बात इतनी सी की गई है कि जो ऑफिसर जिसको एग्जीक्यूशन का प्रोसेस इंट्रस्ट किया गया था वो ये बताएगा कि भाई किस दिन उसने जो इश्यू ऑफ प्रोसेस था, एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस था उसको एग्जीक्यूट किया, और अगर जो स्पेसिफाइड डे था जिस दिन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था उस दिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, थोड़ा डिले हो गया इन एग्जीक्यूशन, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को बताए कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ डिले. ठीक है. और अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया तो फिर वो बताए कि वाई इट वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड एंड ही शैल रिटर्न द प्रोसेस विद द एंडोर्समेंट टू द कोर्ट. अब अगर एंडोर्समेंट इज टू दैट इफेक्ट दैट द ऑफिसर इज अनेबल टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस, then the court shall examine him touching his alleged inability and may if it thinks fit summon and examine witnesses as to inability and shall record the result. कि कोर्ट पूछेगा कि एक बार बताइए क्यों नहीं हो पाया, क्या रीजंस थे. इस पर्पस के लिए कोर्ट ऑब्वियसली ऑफिसर को भी एग्जामिन कर सकता है और विटनेसेस को भी इस पर्पस के लिए बुला के एग्जामिन कर सकता है. अब आ जाते हैं स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पे. रूल 26 says and talks about stay of execution. It says the court to which the decree has been sent for execution shall, upon sufficient cause being shown, stay the execution of such decree for a reasonable time to enable the judgment debtor to apply to the court by which the decree was passed or to any court having the appellate jurisdiction in respect of the decree or the execution thereof for an order to stay execution or for any other order relating to decree or execution which might have been made by such court of first instance or appellate court if the execution has been issued thereby or if the application for execution has been made thereto. अब जो रूल 26 का सब रूल 1 है वो ट्रांसफरी कोर्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है. अब एक बात का ध्यान रखिए, जो पावर ऑफ स्टे है विच इज वेस्टेड विद द ट्रांसफरी कोर्ट, इट इज नॉट सिमिलर टू द पावर ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री. ठीक है. वेयर एज द ट्रांसफरर कोर्ट can grant an absolute stay, the transferee court can stay the execution only for a reasonable time to enable the judgment debtor to apply to the transferor court or to appellate court to grant a stay against the execution. ठीक है. तो यहाँ पे पावर ट्रांसफरी कोर्ट की लिमिटेड है और जिस कंटेक्स्ट में है उस कंटेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा. आई रिपीट अगेन, the power to stay execution of a decree by a transferee court is not similar to the power of the court which passes a decree. Whereas the transferor court can grant an absolute stay, the transferee court can grant stay of execution only for a reasonable time in order to enable the judgment debtor to apply to the transferor court or to appellate court to grant stay against the execution. All right, so दोनों powers में difference है, ध्यान रखिएगा.
अब रूल 26 का सब रूल 2 छोटी सी इतनी सी बात करता है कि अगर मान लीजिए द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेप्टर हैज बीन सीज्ड अंडर सच एग्जीक्यूशन, तो द कोर्ट विल इश्यू एग्जीक्यूशन में ऑर्डर रेस्टिट्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी और डिस्चार्ज सच पर्सन पेंडिंग द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अब जो आपका सब रूल 3 है वो कहता है कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन करने से पहले या रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी या डिस्चार्ज ऑफ द जजमेंट डेप्टर ऑर्डर करने से पहले कोर्ट जजमेंट डेप्टर से सिक्योरिटी रिक्वायर करेगा या उस पर वो कंडीशन इम्पोज करेगा जैसे कि वो सही समझता है, एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, अब ये प्रोविजन मैंडेटरी और इम्पेरेटिव है। दिस प्रोविजन इज व्हाट? मैंडेटरी। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, इससे पहले यहाँ पे मे रिक्वायर लिखा हुआ था, इससे पहले यहाँ पे मे रिक्वायर लिखा हुआ था। फिर जब 1976 की अमेंडिंग एक्ट आई तो उसने इस मे को शैल कर दिया। तो लेजिस्लेचर का इंटेंशन पूरी तरीके से क्लियर है कि जब भी रूल 26 में स्टे ऑर्डर हो रहा है या रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्डर हो रही है, डिस्चार्ज ऑफ जजमेंट डेप्टर ऑर्डर हो रहा है, तो सिक्योरिटी और इम्पोजिशन ऑफ कंडीशंस कोर्ट लगाएगा ही लगाएगा, विच इज एक्टिंग अंडर रूल 26। ठीक है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। दिस इज व्हाट? अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है। अब रूल 27 तो आपको लाइबिलिटी की बात करता है कि रेस्टिट्यूशन या डिस्चार्ज जो रूल 26 में ऑर्डर किया गया है उसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और हिज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सीज्ड। जजमेंट डेप्टर ये ना सोचे कि मेरली बिकॉज रूल 26 में ट्रांसफरी कोर्ट ने जो रेस्टिट्यूशन ऑर्डर कर दिया प्रॉपर्टी का या डिस्चार्ज ऑफ हिज पर्सन ऑर्डर कर दिया, तो जजमेंट डेप्टर ये ना समझने लगे कि ही कैन नॉट बी अगेन अरेस्टेड और हिज प्रॉपर्टी अगेन कैन नॉट बी सीज्ड। इट कैन बी सीज्ड और अटैच्ड एंड ही कैन अगेन बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, तो वो 27 ये बस यही आपको बता रहा है, रूल 27 आपको यही बता रहा है कि जो लाइबिलिटी है जजमेंट डेप्टर की रूल 26 के ऑर्डर की वजह से अफेक्ट नहीं हो जाती। ठीक है, merely because he has been restituted his property or merely because he has been released doesn't mean that the same process कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट हिम। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं निकाल लीजिएगा कि सेम प्रोसेस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट हिम। लाइबिलिटी वही रहती है। एक बार स्टे का पीरियड खत्म हुआ या स्टे सेट असाइड हो गया, देन ही कैन अगेन बी अरेस्टेड, हिज प्रॉपर्टी कैन बी अगेन अटैच्ड और सीज्ड। ठीक है, एज द केस में बी। रूल 28 आपको ये बताता है कि एनी ऑर्डर of the court by which the decree was passed or of such court of appeal as aforesaid in relation to execution of such decree shall be binding upon the court to which the decree was sent for execution। सिंपल सी बात है, ट्रांसफरर कोर्ट और अपेलेट कोर्ट का जो ऑर्डर है इट वुड बाइंड द ट्रांसफरी कोर्ट। तो दैट इज बेसिक कॉमन सेंस, दैट इज बेसिक लीगल कॉमन सेंस। अब रूल 29 पे आ जाते हैं। रूल 29 क्या कहता है? Stay of execution pending suit between decree holder and judgment debtors. It says where a suit is pending in any court against the holder of a decree of such court or of a decree which is being executed by such court on the part of the person against whom the decree was passed, the court may on such terms as to security or otherwise as it thinks fit stay the execution of decree until the pending suit has been decided, provided that if the decree is one for payment of money, the court shall, if it grants stay without requiring security, recorded reasons for doing so. Now you must keep one thing in mind. For this rule to apply, there are two simultaneous proceedings in one and the same court. एक ही कोर्ट में दो प्रोसीडिंग्स हैं। ठीक है, और पहली कंडीशन क्या होगी? पहली प्रोसीडिंग क्या है? proceeding in execution of a decree at the instance of the decree holder against the judgment debtor। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि डिक्री होल्डर ने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया होगा। सो द फर्स्ट प्रोसीडिंग इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एट द इंस्टेंस ऑफ डिक्री होल्डर अगेंस्ट द जजमेंट डेप्टर, एंड सेकेंड इज अ सूट एट द इंस्टेंस ऑफ द जजमेंट डेप्टर अगेंस्ट द डिक्री होल्डर। जो सेकेंड प्रोसीडिंग है, सेकेंड प्रोसीडिंग पे ही आपको मेन फोकस रखना है। तो पहला तो आपका कॉमन सेंस की ही बात है कि पहली प्रोसीडिंग है कि डिक्री होल्डर ने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया अगेंस्ट द जजमेंट डेप्टर। अब एट द इंस्टेंस ऑफ जजमेंट डेप्टर देयर इज अ सूट अगेंस्ट द डिक्री होल्डर। ठीक है, कि मान लीजिए ऐसे इसको समझिए कि आई एम द डिक्री होल्डर, आप जजमेंट डेप्टर है।
मैंने कोर्ट में आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आई एम द डिक्री होल्डर, आई वन द केस, मेरे हाथ में डिक्री है, अब मैं उसके एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया हूँ आपके खिलाफ। अब उसी कोर्ट में आपने मेरे खिलाफ सूट भी किया है, विच इज पेंडिंग इन सच कोर्ट, उसी कोर्ट में वो पेंडिंग है, तो ये सेकंड प्रोसीडिंग है। तो ये दोनों प्रोसीडिंग जब होती हैं तब ऐसी सिचुएशन में रूल 29 का यूज किया जा सकता है, ऐसे में स्टे ऑर्डर किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू सच टर्म्स और सिक्योरिटी और कंडीशन एज द कोर्ट में थिंग्स फिट। अब यहाँ पे मे शब्द का यूज हुआ है, तो ये डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है, ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है। अगर कोर्ट क्या कहते हैं स्टे करता है रूल 29 में, तो प्रोवाइजो में इसके यही लिखा है कि अगर डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी और कोर्ट ने स्टे बिना सिक्योरिटी लिए दिया है, तो कोर्ट अपने रीजंस रिकॉर्ड करे, और यहाँ पे रीजंस रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है, ठीक है। अब इस पे केस था शौकत हुसैन वर्सेस भूमनेश्वरी देवी, शौकत हुसैन वर्सेस भूमनेश्वरी देवी, डिसाइडेड ऑन 25 अगस्त 1972। अब यहाँ पे रूल 29 के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था और बोला था कि द वर्ड्स सच कोर्ट आर इंपॉर्टेंट। Such court means in the context of that rule that the court in which suit is pending. In other words, the suit must be one not only pending in that court but also one against the holder of a decree of that court. ठीक है, that appears to be the plain meaning of the rule. तो ये जो सच कोर्ट का जो एक्सप्रेशन है, इसका ये मतलब है कि द सूट शुड बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट अगेंस्ट द डिक्री होल्डर एट द इंस्टेंस ऑफ जजमेंट डेप्टर, ठीक है। अब प्रैक्टिकली आपको एक चीज बता दूं, जब भी रूल 29 में अगर स्टे होता है, लेट अस सपोज वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है जैसे कि रूल 29 चाहता है, वो कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तब कोर्ट सिक्योरिटी जरूर लेता है। ऐसे कई हाई कोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है कि usually the security should be taken unless a special case has been made out by the judgment debtor, ठीक है। क्योंकि समझिए पैरामीटर ऑफ एक्सरसाइजिंग डिस्क्रेशन क्या है कि द कोर्ट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर रूल 29 should keep in mind and consider that a party who has obtained a lawful decree is not deprived of the fruits of that decree except for good and cogent reasons, ठीक है। So long as the decree is not set aside by a competent court, it stands good and effective and should not be lightly dealt with so as to deprive the holder of the lawful decree of its fruits. So ordinarily, a decree passed by a competent court should be allowed to be executed unless a strong case is made out on cogent grounds which also satisfies the requirements of rule 29, only then the court may exercise its discretion to grant stay under rule 29, ठीक है। क्या है रूल 29 की दो कंडीशंस? पहली ये है कि a proceeding in execution of a decree at the instance of the decree holder against a judgment debtor, ये दो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, ये दो इसकी कंडीशंस भी हैं। इट रिक्वायर्स टू साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग्स इन वन एंड द सेम कोर्ट, ठीक है। What does it require? It requires two simultaneous proceeding in one and the same court. First is proceeding in execution of the decree at the instance of the decree holder against the judgment debtor, and secondly a suit as the instance of the judgment debtor against the decree holder, ठीक है। हाँ, रूल 29 का ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला, टू इनेबल द जजमेंट डेप्टर एंड डिक्री होल्डर टू एडजस्ट देयर क्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर, और दूसरा टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। ये दो इसके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेयरली बिकॉज रूल 29 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट स्टे। बाउंड नहीं हो जाता कोर्ट, क्योंकि अब कोर्ट को स्टे देना ही होगा। जब कोर्ट को लगता है कि यस देयर आर स्पेशल ग्राउंड्स, तब कोर्ट अपना डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करेगा। क्योंकि हमेशा ध्यान में ये रखिएगा कि द पार्टी हु हैज ऑब्टेन्ड डिक्री should not be deprived the fruits of that decree except for good and cogent reasons, ठीक है। So a strong case must be made out by the judgment debtor in his application, and the court must weigh
the grounds that has been set forth by the judgment debtor against the interest of the decree holder, and see where the interest of justice will lie. ठीक है. अब इंजंक्शन के टाइम पे मैं आपको स्टे और इंजंक्शन ऑर्डर में डिफरेंस बता चुका था, लेकिन एक बार मैं फिर रीइटरेट कर देता हूँ. स्टे और इंजंक्शन में अंतर होता है. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर that an order of injunction is an order against a person or an individual restraining him from doing something, while an order of stay is a direction or order of the court not to do something. ठीक है. Proceedings taken in contravention of injunction order will make the person liable to imprisonment, while proceedings taken in contravention of stay order would be a nullity and would have no effect whatsoever. एक और बात याद रखिएगा, स्टे ऑर्डर मान लीजिए अगर एपेलेट कोर्ट से आता है तो वो कोर्ट के रेफरेंस में होता है. कभी भी एपेलेट कोर्ट इंजंक्शन नहीं देता है लोअर कोर्ट को, वो स्टे देता है. सो स्टे इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द कोर्ट वाइल इंजंक्शन इज इन कंटेक्स्ट ऑफ अ पर्सन. ठीक है. अब आ जाते हैं मोड ऑफ एग्जीक्यूशन पे. रेफर टू सेक्शन 51 ऑफ सीपीसी. अब उन्होंने कुछ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन दिए हुए हैं. उसमें बोला था पावर ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन. ठीक है. तो पहला क्या है, बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, बाय अटैचमेंट एंड सेल और सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग द पीरियड स्पेसिफाइड in section 58 where arrest and detention is permissible under that section, by appointing a receiver or in such other manner as the nature of relief may require. ठीक है. तो ये रेमेडीज आपको सेक्शन 51 ने प्रोवाइड किए. सेक्शन 51 एक सब्सटैंशियल प्रोविजन है. ठीक है. तो बेसिकली यू बीइंग द डिक्री होल्डर कैन चूज एनी ऑफ द मोड्स अवेलेबल. इन मोड्स में से जो भी मोड इज मोर फिटिंग, you can choose that. You can choose more than one, or you may choose only one with the exclusion of the rest. ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से कौन कौन सी रेमेडी चाहते हैं. ठीक है. लेकिन आप रेमेडी या मोड को जब चूज करते हैं तब उसके ऊपर भी कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है. ठीक है. यूजुअली तो यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर मोड फॉर एग्जीक्यूटिंग और एनफोर्सिंग अ डिक्री वुड बी मोर फिटिंग. हाउएवर इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीपीसी. देखिए सेक्शन 51 शुरू ही ऐसे होता है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट मे. तो आप एप्लीकेशन एज ए डिक्री होल्डर देते हैं, फिर आप इनमें से मोड चूज कर सकते हैं, दैट इज फाइन. हाउएवर इवन योर एक्ट ऑफ चूजिंग एनी ऑफ द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इज सब्जेक्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द जज. ठीक है. अब मान लीजिए किसी केस में अरेस्ट और डिटेंशन जरूरी नहीं है जजमेंट डेप्टर का, लेकिन आप जबरदस्ती चाहते हैं उसका अरेस्ट और डिटेंशन हो. ठीक है. विदाउट देयर बीइंग एनी ग्राउंड और एनी रिक्वायरमेंट फॉर हैविंग रिकोर्स टू सच अ मोड, तो ऐसे केस में कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर, इवन दो यू आर द पर्सन हु चूजेस द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, येट that mode is subject to conditions and limitations of CPC and it is also subject to the discretion of the honorable court. अब सवाल उठता है कि क्या simultaneous proceedings ली जा सकती हैं या concurrent proceedings ली जा सकती हैं in mode of execution of the decree. इसके लिए श्याम सिंह वर्सेस कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर is an apt case. It was reported in 1993 Supreme Court cases supplemental volume 1 page number 693. There for recovery of certain debts, simultaneous proceedings for attachment and sale of movable as well as immovable property were taken. This action was challenged. The matter came to Supreme Court. Supreme Court said, it has been said that the difficulties of a litigant begin when he has obtained a decree. It is a matter of common knowledge that far too many obstacles are placed in the way of a decree holder
who seeks to execute his decree against the property of the judgment debtor. Perhaps because of that, there is no statutory provision against a number of execution proceedings continuing concurrently. Section 51 of CPC gives an option to the creditor of enforcing the decree either against the person or the property of the debtor, and nowhere it has been laid down that the execution against the person or the debtor shall not be allowed unless and until the decree holder has exhausted his remedy against the property. मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीपीसी में कहीं ये बार नहीं है कि बिफोर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन बाय, मतलब इसका मतलब है कि अगर आप जजमेंट डेप्टर का अरेस्ट और डिटेंशन करना चाहते हैं तो सीपीसी में कहीं ये नहीं लिखा है कि यू फर्स्ट हैव टू एग्जॉस्ट ऑल द रेमेडी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ओनली देन यू कैन प्रोसीड अगेंस्ट दिस पर्सन, ऐसा कहीं नहीं है. साइमल्टेनियसली क्रेडिटर एनी ऑफ द मोड चूज कर सकता है, ठीक है. However, always remember that it is also subject to the judicial discretion of the court. तो ये तो हो गई लॉ के बार की बात कि लॉ कहीं बार नहीं करता. क्रेडिटर चाहे तो साइमल्टेनियस मोड ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीड कर सकता है, पर आपको याद रखना चाहिए इट इज सब्जेक्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, और जो कोर्ट है मे रेफ्यूज साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन and he may allow decree holder to avail himself only one mode of execution at a time. ये डिस्क्रेशन उसके पास मौजूद है, ठीक है. ये पावर और डिस्क्रेशन कोर्ट के पास मौजूद होता है. दिस पॉइंट वाज आल्सो टोल्ड इन श्याम सिंह वर्सेस कलेक्टर while referring to the judgment of A.K. Subramania Sheniyar versus A. Punnuswamy Shettiar. All right. अगर आपको एक्यूरेटली जानना है कि कोर्ट कहाँ रिफ्यूज़ कर सकता है देन यू कैन रेफर टू ऑर्डर 21 रूल 21. ठीक है, ऑर्डर 21 का रूल 21 वहाँ पे सीधे लिखा है कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिफ्यूज एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम अगेंस्ट द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेप्टर. ठीक है, दैट पावर इज अवेलेबल टू द कोर्ट. अब जरा हम सेक्शन 51 का थोड़ा आगे का भी पार्ट पढ़ लें, उसके बाद मैं जरा मोड्स पे थोड़ा और एलैबोरेट करूँगा. सेक्शन 51 फिर आगे प्रोवाइजर में कहता है वेदर डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर्ड अनलेस आफ्टर गिविंग अ जजमेंट डेप्टर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज why he should not be committed to prison. The court, for reasons to be recorded in writing, is satisfied that the judgment debtor with the object of effect of obstructing or delaying the execution of the decree is likely to abscond or leave the local limits of jurisdiction of the court, or has after institution of the suit in which the decree was passed dishonestly transferred, concealed or removed any part of his property or committed any other act of bad faith in relation to his property, or B, that the judgment debtor has or had since the date of decree the means of paying the amount of the decree or some substantial part thereof, or refuses or neglects or has refused or neglect to pay the same, and C, the decrees for a sum for which the judgment debtor was bound in fiduciary capacity to account. अब क्लॉज ए में जो कीवर्ड है वो ऑब्स्ट्रक्टिंग और डिलेइंग द एग्जीक्यूशन, ये कीवर्ड्स हैं. ठीक है, क्लॉज बी में जो कीवर्ड्स हैं वो हैं रिफ्यूज़ल और नेग्लेक्ट. क्लॉज सी में जो कीवर्ड्स हैं वो है फिड्यूशरी कैपेसिटी. ये सब याद रखिएगा. ऑफ कोर्स क्लॉज ए में ये भी बात याद रखिएगा कि एब्सकॉन्डिंग, लीविंग द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन, या dishonestly transferring, concealing or removing the part of his property or committing the act of bad faith in relation to his property are also covered. लेकिन that should be done by the judgment debtor with the intention or object of obstructing or delaying the execution of that decree. ठीक है, तो मेन कीवर्ड्स वो हैं. एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? In calculation of the means of the judgment debtor for the purpose of clause B, there shall be left out any property which by or under in law or custom having force of law for the time being in force is exempt from attachment in execution of decree. तो exemption of attachment आपका section 60 में दिया गया है. ये important section है, इसको आपको as it is पूरा का पूरा देखना पड़ेगा. ठीक है, पर बेर एक्ट लेवल पे ही, इसमें कोई कंसेप्चुअल पॉइंट नहीं इन्वॉल्व है. आपको बस इसको पूरा पढ़ना है और ध्यान रखना है. कभी कभी सेक्शन 60 पे ही क्वेश्चन आ जाता है विच प्रॉपर्टीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट, मीन्स में आता है. अब मोड ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए आप ऑर्डर 21 का रूल 30 पहले देखिए, विच टॉक्स अबाउट डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी. यहाँ पे लिखा है एवरी डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी including a decree for payment of money as an alternative to some other relief may be executed by detention in civil prison of the judgment debtor
और बाय अटैचमेंट इन एंड सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बाय बोथ. ठीक है, तो ये मोड्स अवेलेबल है. फिर when the decrees for specific movable property, अभी यहाँ पे लिखा है when the decrees for specific movable or for share in a specific movable property, it may be executed by seizure if practicable of the movable or share and by delivery thereof. मतलब by seizure and delivery to the person who is entitled, मतलब decree holder. ठीक है. और दूसरा रास्ता क्या है? By detention in civil prison of the judgment debtor or by attachment of his property or by both. Subrule 2 says where the attachment under subrule 1 has remained in force for 3 months. Attachment 3 महीने के लिए. And the judgment debtor has not obeyed the decree and the decree holder has applied to have the attached property sold. Such property may be sold and out of proceeds the court may award the decree holder in cases where any amount has been fixed by the decree to be paid as an alternative to delivery of movable property. मतलब उस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऑल्टरनेटिव में मनी दिया जा सकता है या सच कंपनसेशन दी जा सकती है एज द कोर्ट में थिंग्स फिट, और जो भी बैलेंस बचता है वो जजमेंट डेप्टर को रिटर्न कर दिया जाएगा ऑन हिज एप्लीकेशन. Sub rule 3 says where the judgment debtor has obeyed the decree and paid all cost of executing the same which he is bound to pay, or where at the end of 3 months from the date of attachment no application to have the property sold has been made, or if made has been refused, then the attachment shall cease. अब जरा सीधे आप आ जाइए रूल 35 और 36 पे. अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं. Rule 35 says whether decrees for delivery of any immovable property, possession thereof shall be delivered to the party whom it has been adjudged or to such person as he may appoint to receive delivery on his behalf. ये similar है with the movable property. ये जो चीजें हैं ये दोनों similar है movable property के context में. पर आगे देखिए क्या लिखा है. And if necessary by removing any person bound by the decree who refuses to vacate such property. मान लीजिए judgment debtor refuses to vacate such property, तो ऐसे पर्सन को रिमूव किया जा सकता है बाय फोर्स, और डिक्री होल्डर को या एनी पर्सन अपॉइंटेड इन हिज बिहाफ उसको पोजेशन में रखा जा सकता है, पोजेशन में डाला जा सकता है. सब रूल 2 ऑफ रूल 35 सेज वेदर डिक्री इज फॉर जॉइंट पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सच पोजेशन शैल बी डिलीवर्ड by affixing a copy of the warrant in some conspicuous part in some conspicuous place on the property and by proclaiming by beat of drum or other customary mode at some convenient place the substance of the decree. इसको कुछ लोग कहते हैं डुग्गी बजा के घोषणा करना कि दिस पर्सन इज इंटाइटल्ड टू द जॉइंट पोजेशन, और फिर वो वारंट वहाँ पे चिपका देते हैं. ऐसा अभी भी होता है. बीट ऑफ ड्रम वाले जो मोड्स हैं ये आपको बिहार, यूपी, एमपी में तो दिखेंगे ही दिखेंगे. फिर सब रूल 3 says where the possession of any building or where the possession of any building or enclosure is to be delivered and the person in possession being bound by decree does not afford free access, the court through its officers may, after giving reasonable warning and facility to any woman not appearing in public according to the customs of the country to withdraw, मतलब पर्दानशीन woman, remove or open any lock or bolt or break open any door or do any other act necessary for putting decree holder in possession. Rule 36 क्या कहता है? Where the decrees for the delivery of immovable property in occupancy of tenant or some person entitled to occupy the same and not bound by a decree to relinquish such occupancy, मतलब tenant is not bound to relinquish the property, so court shall order delivery to be made by affixing a copy of the warrant in some conspicuous place of the property and proclaiming to the occupant, मतलब tenant को, by beat of drum or other customary mode at some convenient place the substance of the decree in regard to the property. अब ये वैसा ही है कि मान लीजिए एक पर्सन और टेनेंट का लैंडलॉर्ड आर फाइटिंग अ टाइटल सूट, तो जो पर्सन है वो जीत जाता है केस. ठीक है, तो टेनेंट को तो लगेगा कि उसका लैंडलॉर्ड ही ओरिजिनल ओनर है, तो उसको बता दिया जाता है कि देखिए ये जो स्ट्रेंजर था ही इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी जिस पे आप टेनेंट है. सो बाय लॉ यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिलिंक्विश सच ऑक्यूपेंसी. लेट अस सपोज ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है. अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते हैं कि टेनेंसी एग्रीमेंट ही इनवैलिडेट हो जाएगा, फिर टेनेंसी एग्रीमेंट को रिफ्रेश करना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उधर नहीं जाते, सिंपल रखते हैं समझने के लिए. तो ऐसी सिचुएशन में ये जो दूसरा पर्सन है ये
अब लैंडलॉर्ड बन जाएगा। तो टेनेंट को बता दिया जाता है कि जो तुम्हारा प्रीवियस लैंडलॉर्ड था अब ये नहीं है, अब ये जो पर्सन है ये तुम्हारा लैंडलॉर्ड है, एंड ही इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ विच यू आर टेनेंट। ठीक है, ही इज द ओनर ऑफ दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच यू आर टेनेंट। और उसको ये बताया जाएगा कि डिक्री का सब्सटेंस क्या है, और आगे से जो भी टेनेंसी के जितने भी मैटर्स होते हैं और जितनी भी आपकी एज अ टेनेंट ड्यूटी होंगी वो अब आप इनको करेंगे। ठीक है, नॉट टू योर प्रीवियस लैंडलॉर्ड। अब इस पे एक केस है, शमसुद्दीन वर्सेस अब्बास अली, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, डिसाइडेड ऑन 19 जनवरी 1970। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि जब रूल 35 पढ़ा जाता है और स्पेसिफिकली सब रूल 1 and 3, तो इसको खास या एक्चुअल पोजेशन कहते हैं। ठीक है, while the possession referred to in sub rule 2 of rule 35 and rule 36 is called formal possession और symbolical possession। ये टर्म्स अभी से जान लीजिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। Formal or symbolical possession is delivered by affixing a copy of the warrant in some conspicuous place of the property and by proclaiming by the beat of drum or the other customary mode at some convenient place the substance of the decree. Rule 35 and 36 refer to cases where a suit is brought for possession of immovable property and a decree is passed in the suit for delivery of the property to the decree holder. If the immovable property of which possession is directed by the decree to be delivered to the decree holder is in possession of the judgment debtor, actual possession must be delivered to the decree holder under sub rule 1 of rule 35. Where it is in possession of a tenant or other person entitled to occupy the same, only symbolical possession can be delivered, and that is to be done under rule 36. Symbolical possession can in such cases operate as actual possession against the judgment debtor. और एक और बात याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन ऑल्सो अवॉर्ड मीन प्रॉफिट एज एन इंटेग्रल पावर टू ऑर्डर डिलीवरी ऑफ पोजेशन एंड कॉन्सिक्वेंशियल टू अनलॉफुल रिटेंशन ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मीन प्रॉफिट्स अवॉर्ड किए जा सकते हैं। एक बार कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि जजमेंट डेप्टर या एनी पर्सन बाउंड बाय डिक्री इज इन अनऑथोराइज्ड पोजेशन, तो उसको तो इजेक्ट करेगा ही प्रॉपर्टी से, साथ में मीन प्रॉफिट भी अवॉर्ड करेगा। ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी कर सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और क्या मोड होंगे पेमेंट के? मान लीजिए मनी डिक्री है, ठीक है, और भी मोड्स पे थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा ना ऑर्डर 21 में जरा हॉच पॉच है कि कोई प्रोविजन किधर जा रहा है, कोई प्रोविजन उधर जा रहा है, लेकिन कम से कम ऑर्डर 21 में ही है, यही गनीमत है। तो और भी मोड्स हैं पेमेंट के अंडर अ मनी डिक्री। अब जैसे रूल 1 और रूल 2 देखिए, ठीक है, रूल 1 और रूल 2 देखिए ऑफ ऑर्डर 21। तो ये कहता है कि ऑल मनी पेबल अंडर अ डिक्री शैल बी पेड एज फॉलोज, नेमली बाय डिपॉजिट इनटू कोर्ट whose duty is to execute the decree or sent to that court by postal money or through bank. B, out of court to the decree holder by postal money order or through bank or by any other mode wherein payment is evidenced in writing. Mark these words, payment is evidenced in writing. ये होना ही होना चाहिए, payment should be evidenced in writing, वरना ये नहीं कहा जाएगा कि you have complied with rule 1. C, otherwise as the court which made the decree direct. ठीक है, अभी इसमें तो ये तो बहुत ही वाइड ग्राउंड है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बट इसको प्रॉपरली कंस्ट्रू करना चाहिए लॉजिकली। Subrule 2 says where the payment is made under clause A or clause C of subrule 1, the judgment debtor shall give notice thereof to the decree holder either through the court or directly to him by registered post, acknowledgement due. Subrule 3 says where the money is paid by postal money order or through bank under clause A or clause B of subrule 1, the money order or the payment through bank as the case may be shall accurately state the following particulars, namely A, the number of the original suit, B, the name of the parties, or where there are more than two plaintiffs or more than two defendants as the case may be, the name of the first two plaintiffs and the first two defendants. C, how the money remitted is to be adjusted, that is to say whether it is toward principal, interest or cost.
D, the number of the execution of the number of the execution case of the court where the case is pending, and E, name and address of the payer. Subrule 4 of Rule 1 says, on any amount paid under Clause A or Clause C of Subrule 1, interest, if any, shall cease to run from the date of service of notice referred to in Subrule 2. Mark this कि interest कब से cease to run करेगा, इसको लेके आपको aware रहना चाहिए. Subrule 5 says, on any amount paid under Clause B of Subrule 1, interest, if any, shall cease to run from the date of payment, provided that where the decree holder refuses to accept the postal money order or payment through a bank, interest shall cease to run from the date on which the money was tendered to him, or where he avoids acceptance of the postal money order or payment through bank, interest shall cease to run from the date on which the money would have tendered to him in ordinary course of business of the postal authorities or bank as the case may be. तो बेसिकली आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्लॉज ए और सी में कब इंटरेस्ट सीज करेगा जो सब रूल 4 बताता है, और क्लॉज बी में इंटरेस्ट कब सीज करेगा जो सब रूल 5 बताता है. अब रूल 2 देखिए, पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू डिक्री होल्डर. अब ये कहता है कि वेयर एनी मनी पेबल अंडर अ डिक्री ऑफ एनी काइंड इज पेड आउट ऑफ कोर्ट. देखिए, एनी मनी पेबल अंडर अ डिक्री ऑफ एनी काइंड इज पेड आउट ऑफ द कोर्ट, और डिक्री ऑफ एनी काइंड इज अदरवाइज एडजस्टेड, नॉट नेसेसरली अ मनी डिक्री. ये भी हो सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी के को नहीं दे सकते तो उसके क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव में अगर मनी का मेंशन है तो मान लीजिए जजमेंट डेप्टर ने कह दिया कि आप ये पैसा ले लो या ज़्यादा ही पैसा ले लो along with the interest and cost, और do not ask for that movable property. ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में क्या है, ये कह रहा है कि where any money is payable under a decree of any kind is paid out of the court, or decree of any kind is otherwise adjusted in whole or in part to the satisfaction of the decree holder. The decree holder shall certify such payment or adjustment to the court whose duty is to execute the decree, and the court shall record the same accordingly. अब ये उन situations की बात कर रहा है जहाँ पे judgment debtor, मान लीजिए आप डिक्री होल्डर हैं, यहाँ पे जजमेंट डेप्टर आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटिस्फाई कर देता है कि ओके टेक दिस सम, और rather than taking the property that has been ordered by the court, take this alternative property. ठीक है, तो बेसिकली यू बीइंग द डिक्री होल्डर आपका सेटिस्फैक्शन सुप्रीम है. अगर आपका सेटिस्फैक्शन एकदम पूरी तरीके से वैलिड है and you are fully satisfied, there is no need to go into the execution. You can simply explain to the court that you have been fully satisfied, or you can certify to the court that the judgment debtor has given a requisite amount of payment or has made some adjustment which has fully satisfied you. और ये सर्टिफिकेशन आपको किसको बताना होगा, किसको देना होगा, ये आपको उस कोर्ट को देना होगा whose duty is to execute the decree. और जब आप सर्टिफाई करेंगे then the court shall record the same accordingly. अब सब रूल 2 क्या कहता है, the judgment debtor or any person who has become surety for judgment debtor may inform the court of such payment or adjustment and apply to the court to issue a notice to the decree holder to show cause on a date to be fixed by the court why such payment or adjustment should not be recorded as certified, and if after service of such notice decree holder fails to show cause why such payment or adjustment should not be recorded as certified, the court shall record the same accordingly. अब रूल 1 किसकी बात कर रहा था, जहां पे डिक्री होल्डर खुद ही सर्टिफाई कर रहा है कि पेमेंट और एडजस्टमेंट मेड हो गया है. रूल 2 जजमेंट डेप्टर अप्लाई कर रहा है कोर्ट के सामने कि आप जो डिक्री होल्डर को बुलाइए और उनसे कहिए कि आप सर्टिफाई करिए कि द डिक्री हैज बीन प्रॉपरली सेटिस्फाइड, कोई पेमेंट या एडजस्टमेंट इन परसुएंस ऑफ डिक्री मेड हो चुका है बाय द जजमेंट डेप्टर. तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है नोटिस भेजेगा डिक्री होल्डर को कि आप कारण बताइए कि कोई भी पेमेंट या एडजस्टमेंट हम क्यों ना रिकॉर्ड कर लें that the decree has been fully satisfied. और फिर अगर डिक्री होल्डर fails to show cause that why such payment or adjustment should not be recorded, तब कोर्ट shall record the same accordingly. पर ये इतना आसान नहीं है, अभी आगे देखिएगा. रूल 2 कहता है no payment or adjustment shall be recorded as the instance of judgment debtor unless the payment is made in the manner provided in rule 1. मतलब rule 1 में जो लिखा है
उसी के हिसाब से पेमेंट देनी चाहिए, या बी पेमेंट और एडजस्टमेंट इज प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, या सी पेमेंट और एडजस्टमेंट इज एडमिटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिक्री होल्डर इन हिज रिप्लाई टू द नोटिस गिवन अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 1 और बिफोर द कोर्ट। तो थर्ड है आपका एडमिशन। तो या तो आप रूल 1 से कंप्लाई करिए, या तो देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पेमेंट और एडजस्टमेंट, या तो डिक्री होल्डर शुड हिमसेल्फ एडमिट सच पेमेंट और एडजस्टमेंट इन हिज रिप्लाई। तभी जाके कोई पेमेंट और एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करेगा कोर्ट एट द इंस्टेंस ऑफ जजमेंट डेप्टर, अदरवाइज ही वोंट। ठीक है, सो रूल 2 इज सब्जेक्ट टू रूल 2A। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, सिर्फ बेरेक लेवल का अवेयरनेस रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सब रूल 3 says that a payment or adjustment which has been certified or recorded as aforesaid shall wait let me rephrase it again. A payment or adjustment which has not been certified or recorded as aforesaid shall not be recognized by any court executing the decree. So sub rule 3 is telling you that a payment or adjustment जो उस तरीके से सर्टिफाइड नहीं है, किस तरीके से, जैसा कि प्रोविजन में मेंशन्ड है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा उस पेमेंट और एडजस्टमेंट को। ठीक है, सो प्रॉपरली स्पीकिंग either the payment should be made in the manner provided in rule 1 or payment or adjustment should be proved by a documentary evidence, or it should be admitted by the decree holder in his reply to notice given under sub rule 2. So sub rule 2 of rule 2 is subject to sub rule 2A. इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। सब रूल 1 तो काफ़ी आसान है, रूल 2 का ऑफ ऑर्डर 21 वो सिंपल सी इतनी बात करता है कि डिक्री होल्डर खुद ही सर्टिफाई कर सकता है पेमेंट और एडजस्टमेंट, और कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगा दैट सर्टिफिकेशन। अब सब रूल 2 में जजमेंट डेप्टर अप्लाई कर रहा है फॉर रिकॉर्डिंग दैट पेमेंट और एडजस्टमेंट। तो उसका क्या प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रोसीजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादातर इसी पे बनता है। हालांकि आपको अवेयर सबको सारी सिचुएशंस को लेके रहना है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर इसी चीज़ पे बनेगा। तो रूल 2 को ध्यान से पढ़िएगा और रूल 1 को भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर मोड ऑफ सेटिस्फाइंग द डिक्री। ये भी एक मोड है सेटिस्फाइंग डिक्री को सेटिस्फाई करने का। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अनदर मोड फॉर सेटिस्फाइंग द डिक्री। अब एक और मोड बताता हूँ फॉर सेटिस्फाइंग द डिक्री, दैट इज एग्जीक्यूशन इन अ केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज। ठीक है, रूल 18 देखिएगा। देखिए रूल 18 कहता है एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज वेयर applications are made to a court for the execution of cross decree in separate suits for payment of two sums of money passed between the same parties and capable of execution at the same time by such court, then A, if two sums are equal, satisfaction shall be entered upon both the decrees, and B, if two sums are unequal, execution may be taken out by the holder of the decree for the larger sum and so much as remains after deducting the smaller sum, and the satisfaction of the smaller sum shall be entered on the decree for the larger sum as well as satisfaction on the decree for the smaller sum. अब जरा इसके सब रूल 3 पे आइए, वो क्या कहता है, a decree holder in one of the suits, this rule shall not deem to apply unless a decree holder in one of the suits in which the decree has been made is the judgment debtor in other, and each party fills the same character in both suits, mark the word same character, and B, sums due under the decrees are definite, mark the word sum and definite. Sub rule 4 says that the holder of a decree passed against several persons jointly and severally may treat it as a cross decree in relation to a decree passed against him singly in favor of one or more of such person. इसको लेके आप जरा इलस्ट्रेशन डी देख सकते हैं, इस बात पे इलस्ट्रेशन डी है। इलस्ट्रेशन मैं नहीं रीड करूंगा, इलस्ट्रेशन यू कैन रीड योरसेल्फ। अब इसकी कंडीशन बता देता हूँ। For the applicability of this rule, the first condition that must be fulfilled is the decree must be for payment of a definite sum of money, either equal or different. ठीक? But the sum should be definite. Second, decree must have been passed in separate suits.
Third, decree holder in one decree must be judgment debtor in other decree. Fourth, each party must fill the same character in both suits. Your illustration A, B, C are about those scenarios where the parties are not filling the same character. Fifth condition is both decrees must be capable of execution by the same court at the same time. Sixth condition is application should have been made to the court for the execution of both the decrees. जब ये condition satisfy होती हैं as laid down in the section, only then you can have execution in case of cross decrees. अब ये काफ़ी कुछ आपका रूल 6 ऑफ ऑर्डर 8 से मिलता है, सेट ऑफ से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो एकदम सेट ऑफ से मिलती जुलती हैं, वैसी ही अकर हो रही हैं. तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि क्रॉस डिक्रीज कब हो सकती हैं, ठीक है, किन सिचुएशन में हो सकती हैं. और अगेन आपको एक बेसिक बेयर एक्ट लेवल का अवेयरनेस चाहिए इसके लिए. इलस्ट्रेशन को ज़रूर रीड करिएगा, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है पर प्रीलिम्स में, ठीक है. अब देखिए वैसे एग्जाम में आपको इसको क्रॉस डिक्रीज को लेके डिटेल में पूछेगा नहीं, पर इस पे एक केस है भोगानंदम शेषेनियन वर्सेस बुद्धि वीराभद्रार्या, डिसाइडेड ऑन 15 मार्च 1971. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है ये जजमेंट. उन्होंने क्रॉस डिक्रीज को लेके बड़े अच्छे से एग्जामिनेशन किया था और काफ़ी अथॉरिटीज़ इस पे देखी थी. इसमें उन्होंने ये भी बोला था कि जो कोर्ट है वो इक्विटेबल सेट ऑफ भी ग्रांट कर सकता है in the exercise of its inherent power to grant equitable set off, that is dehors the provision of order 21 rule 18 and 19 of civil procedure court. अब ये जो डिसीजन है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, ये लक्ष्मी चंद एंड बालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि in certain cases the court has the power to allow a set off even in cases which do not strictly fall within the terms of order 21 rule 18 of CPC. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्पस के लिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इसी जजमेंट को रेफर किया था, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए थे कि जहाँ पे पावर एक्सरसाइज हो सकती है. नाउ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए, तो उस पर एलैबोरेशन कोई ज़रूरी नहीं होगा. वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर की भी तरफ थोड़ा ज़्यादा जाने लगता है, तो अगर हमने उस पर डिस्कशन किया तो वो हम अपने ट्रैक से भटक जाएंगे. तो बेसिकली एक बात याद रखिएगा कि इक्विटेबल सेट ऑफ भी दिया जा सकता है इवन आउटसाइड द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 रूल 18 एंड इवन 19 ऑफ CPC. अभी रूल 19 ऑफ CPC भी आएगा, वो भी थोड़ा इन्हीं सारी चीज़ों से डील करता है, ठीक है. तो अब हम जरा ऑर्डर 21 का रूल 19 देखते हैं वो क्या कहता है. वो कहता है वेयर द एप्लीकेशन इज मेड टू अ कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अंडर विच टू पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू रिकवर सम्स ऑफ मनी फ्रॉम ईच अदर, देन if two sums are equal, satisfaction for both shall be entered upon the decree, and if two sums are unequal, execution may be taken out only by the party entitled to the larger sum, and so much as only remains after deducting the smaller sum, and the satisfaction of the smaller sum shall be entered upon the decree. अब रूल 19 उस सिचुएशन में अप्लाई करता है जहां पे क्रॉस क्लेम्स एक ही डिक्री में अराइज करते हैं. रूल 18 में दो डिक्रीज थी, सो दैट वाज अ केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज. रूल 19 में एक ही डिक्री में क्रॉस क्लेम्स हैं. कि मान लीजिए कि पहले हम रूल 18 की सिचुएशन से कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कि पहले रूल 18 की सिचुएशन इमेजिन करते हैं. रूल 18 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक डिक्री मेरे पास है, एक डिक्री आपके पास है. रूल 18 की जितनी भी मैंने कंडीशंस बताई सब सेटिस्फाई हो गई कि सेपरेट सूट्स थे फॉर पेमेंट ऑफ मनी, सेम पार्टीज थी, मैं और आप, डिक्रीज आर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम बाय द कोर्ट, ठीक है, और बोथ पार्टीज फिल द सेम कैरेक्टर, एसेट्रा एसेट्रा, जितनी भी सिचुएशंस थी वो सेटिस्फाई हो गई. लेकिन मेन पॉइंट पे फोकस करिए, एक डिक्री मेरे पास है, एक डिक्री आपके पास है, ठीक है. रूल 19 में क्या है, एक ही डिक्री है, देयर इज ओनली वन डिक्री. हाउएवर हमारे जो क्रॉस क्लेम्स हैं और उन पे जो डिसीजन है, वो जो डिसीजन का जो पार्ट जो डिक्री में रिकॉर्ड किया गया है, उसके हिसाब से कुछ पैसा मैं आपको ओ करता हूं, कुछ पैसा आप मुझे ओ करते हैं. तो
उसी डिक्री में अगर दोनों सम बराबर हैं देन द सैटिस्फैक्शन फॉर बोथ शैल बी एंटर्ड अपॉन डिक्री. अगर मान लीजिए यू ओ मी लेस एंड आई ओ यू मोर, तो एग्जीक्यूशन मेरे खिलाफ होगा. ठीक है, लेट अस सपोज यू ओ 50,000, आई ओ 1 लाख. तो उसी क्रॉस क्लेम के अंदर 50-50 तो एकदम एक दूसरे को वाइप आउट कर देगा, है ना. फिर बचा 50,000 क्योंकि आई ओ यू 1 लाख. तो जो 50,000 का जो अमाउंट होगा उसको लेके एग्जीक्यूशन होगा, लार्जर सम को लेके एग्जीक्यूशन होगा. रूल 18 और 19 में मेन डिफरेंस याद रखिएगा. रूल 19 में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो क्रॉस क्लेम्स के अंडर हो रहा है, विच इज अंडर वन एंड द सेम डिक्री. एक ही डिक्री में क्रॉस क्लेम्स हैं, where the parties are entitled to recover sums of money from each other. However, in Rule 18, there are two decrees. एक डिक्री में मैं जजमेंट डेप्टर हूं, आप डिक्री होल्डर हैं, और एक में आप जजमेंट डेप्टर हैं और मैं डिक्री होल्डर हूं. ठीक है, अलॉन्ग विद द अदर कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड अंडर रूल 18. अब याद रखिएगा इन दोनों रूल्स के अलावा भी जो कोर्ट्स हैं उनके पास पावर है टू ऑर्डर अ सेट ऑफ इवन बियॉन्ड दीज रूल्स. ठीक है, ये आपके इक्विटेबल सेट ऑफ होगा एंड दैट इज इवन बियॉन्ड ऑर्डर 21, रूल 18 एंड 19 ऑफ सीपीसी. ये पोजीशन सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट दोनों ने रिकॉग्नाइज किए. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट ज़्यादा डिटेल्ड है, आई विल एडवाइज यू टू रीड इट एटलीस्ट वंस. मैंने स्टडी नोट्स में दे रखा है, पढ़ लीजिएगा. अब वापस चलिए जरा सेक्शन 51 के क्लॉज बी पे, अटैचमेंट एंड सेल और सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी. तो बेसिकली इसका क्या मतलब है. वैसे अटैचमेंट और सेल के लिए ऑर्डर 21 में बहुत सारे प्रोविजंस हैं. ठीक है, और वो सिर्फ बेयर एक्ट लेवल में उस पर भी अवेयरनेस चाहिए. कुछ पॉइंट्स पे एलैबोरेशन जरूरी है, जैसे मटेरियल इरेगुलरिटी में क्या क्या कवर होगा वो मैं बाद में डील करूंगा. अभी जिस पॉइंट से मुझे डील करना है वो मैं बताता हूँ. 51 के बी में लिखा है बाय अटैचमेंट एंड सेल और सेल विदाउट अटैचमेंट. इसका क्या मतलब है. इसका बेसिकली ये मतलब है कि कोर्ट चाहे तो अटैच करे प्रॉपर्टी फिर सेल करे, या बिना अटैचमेंट के प्रॉपर्टी सीधे ही सेल कर दे. देखिए ये जो क्लॉज बी में बाय अटैचमेंट एंड सेल लिखा है, अभी और वाले पॉइंट को इग्नोर करिए जो उसके आगे की बात लिखी है. ये जो बाय अटैचमेंट एंड सेल जो वर्ड ऑकर हो रहा है, ठीक है, क्लॉज बी में जो फर्स्ट वर्ड्स हैं बाय अटैचमेंट एंड सेल, इसमें एंड जो है इसको डिसजंक्टिव पढ़ेंगे आप. ठीक है, दैट इज टू बी रेड एज अ डिसजंक्टिव. ठीक है, तो वहां पे कोई इलीगैलिटी नहीं है अगर कोर्ट बिना अटैचमेंट के प्रॉपर्टी सेल कर देता है. इट ऑर्डर्स the sale of the property without attachment that would neither be void nor without jurisdiction and it would not vitiate sale. ठीक है, it is merely an irregularity at best. क्योंकि यूजुअली कोर्ट्स क्या करते हैं कि पहले प्रॉपर्टी अटैच करते हैं so that the judgment debtor knows that he may not transfer or create an encumbrance over the property after the order of attachment has been made, and after that they sell the property. ठीक है, ये ऑर्डिनरी प्रोसीजर होता है. लेकिन कहीं पे भी कोर्ट पे बाउंडेशन नहीं कि उसे अटैच करके ही सेल करना है, बिना सेल के वो अटैच नहीं कर सकता, या सॉरी मतलब कि वो बिना अटैचमेंट के प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता. ऐसी सिचुएशन नहीं अराइज होती है. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि द कोर्ट हैज द पावर टू सेल द प्रॉपर्टी इवन विदाउट अटैचमेंट. ठीक है, सो ये जो अटैचमेंट एंड सेल लिखा है ना क्लॉज बी में, इट हैज टू बी रेड एज डिसजंक्टिव. ठीक है, इट हैज बीन सो इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट्स. अब उस पर आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना जानने की ज़रूरत है कि बिना अटैचमेंट के भी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है. साथ में ही जो आगे की जो लाइन लिखी है और बाय सेल विदाउट अटैचमेंट, वो ये पॉइंट क्लियर कर देती है. लेकिन कई बार कोर्ट्स में सवाल उठा था कि देखिए जो पहले वर्ड्स हैं बाय अटैचमेंट एंड सेल, इसका मतलब है कि ऑर्डिनरली कोर्ट को अटैच करके ही प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए. द कोर्ट शुड फर्स्ट अटैच द प्रॉपर्टी एंड देन सेल द प्रॉपर्टी. तो उस पे कोर्ट ने बोला था कि अगर कोर्ट बिना अटैचमेंट के भी सेल ऑर्डर कर देता है, इवन देन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी वुड नॉट बी वॉइड or without jurisdiction and it would not vitiate the sale. It is at best an irregularity. ठीक है,
an irregularity of that nature which does not vitiate the proceeding. So आज के लिए मैं इतने ही मोड्स पे रुक जाता हूँ, ठीक है. I don't want to prolong the lecture. तो I think these modes for today would suffice. Tomorrow we will deal with rest of the other modes that are left. So that is it for today. I would see you tomorrow.